السلام علیکم، میٹرو ون نیوز کے ساتھ میں ہوں جویدیہ خان اور میں ہوں ملیحہ خان۔ شہرنامے کے آغاز میں خبر شامل کریں گے لاہور سے، جہاں پی ٹی ایم میں پنجاب کی گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیش آنے والے حادثات کی رپورٹ جاری۔ بارش اور تیز ہواؤں کے باعث پنجاب میں 3 بڑے حادثات، 2 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے، جبکہ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش اور تیز ہواؤں کے باعث 3 بڑے حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ قصور میں رائل میرج ہال کی دیوار گرنے سے ایک بچہ جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے، جبکہ زخمیوں میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو کارروائی مکمل کر دی گئی ہے، جبکہ قصور کے چیٹی کو سٹاپ کے قریب چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ مری میں درخت گرنے کے حادثے میں موٹر سائیکل سوار مرد جاں بحق ہوا۔ پی ڈی ایم کے ترجمان کے مطابق تینوں واقعات میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی معاونت فراہم کی جائے اور شہریوں سے گزارش ہے کہ خراب موسم میں محفوظ مقامات پر رہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد میں بھاون نگر روڈ پر افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد کے علاقے بھاون نگر روڈ پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ انتہائی افسوسناک تھا، جس کے باعث موٹر سائیکل پر سوار دونوں افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد میں ایک شخص کی شناخت ملک ندیم کے نام سے ہوئی ہے، جو مقامی طور پر ڈرائی فروٹ کے کاروبار میں وابستہ تھے، جبکہ دوسرا شخص کراچی سے آیا ہوا مہمان بتایا جا رہا ہے۔ کنڈیارو میں قومی شاہراہ ایک بار پھر خطرناک ثابت ہوئی، جہاں کنڈیارو ٹول پلازا کے مقام پر ٹریفک حادثے میں 7 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ لواحقین کے مطابق کنڈیارو ٹول پلازا کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے سڑک کنارے کھڑے 7 سالہ محمد حارث کھوسو ول پرویز کھوسو کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے جاں بحق بچے کی لاش تحصیل اسپتال منتقل کر دی ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق جاں بحق بچے کا تعلق گاؤں شیر محمد کھوسو سے ہے۔ حادثے کے بعد علاقے میں شدید افسوس کی فضا پھیل گئی، جبکہ شہریوں نے قومی شاہراہ کی تعمیری سست رفتاری اور ٹریفک کنٹرول نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ حالہ میں شہداد پور روڈ پر موٹر سائیکل اور چنچی لوڈر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 17 سالہ فیضان ولد اشرف جاں بحق ہو گیا اور 15 سالہ حسن ولد عبداللطیف شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ دونوں افراد پنجاب کے رہائشی تھے اور کاروباری غرض سے حالہ آئے ہوئے تھے۔ حادثے کے فوری بعد ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو اسپتال منتقل کیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ خبر شامل کریں گے قصور سے۔ قصور کے نواحی گاؤں شیخم میں شدید بارش کے باعث شادی ہال کی دیوار گرنے سے 5 بچے جاں بحق ہو گئے، جہاں قصور کے نواحی گاؤں شیخم میں شدید بارش کے دوران شادی ہال کی دیوار اچانک گر گئی، جس کے نتیجے میں 5 بچے موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ زخمی ہونے والے 3 بچے لاہور ہسپتال میں دم توڑ گئے، جبکہ 2 دیگر کل ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ جاں بحق بچوں کی شناخت عمر فاروق، اللہ وسایہ، حسیب، حیدر اور سعید کے ناموں سے ہوئی ہے۔ حادثے کے بعد ڈپٹی کمشنر آصف رضا زخمی بچوں کی عیادت کے لیے ڈسٹرکٹ بابا بلے شاہ اسپتال پہنچے اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ قصور کے نواحی گاؤں آپ کو بتائیں کہ کنڈیارو میں قومی شاہراہ کے ٹول پلازا کے مقام پر تیز رفتار ٹرالر کی ٹکر سے 7 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا، لاش تحصیل اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کنڈیارو کی قومی شاہراہ پر واقع ٹول پلازا کے مقام پر ایک 7 سالہ بچہ محمد حارث کھوسو ولد پرویز کھوسو گاؤں شیر محمد کھوسو کا رہائشی تھا، سڑک کنارے کھڑا تھا کہ اچانک تیز رفتار ٹرالر نے اسے ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں بچہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق بچے کی لاش تحصیل اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔
खबर दें आपको कि मुस्तफाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लापता होने वाली 25 साला ज़हनी माजूर शादीशुदा खातून महनाज बीबी की लाश नहर से बरामद कर ली गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद मैयत वर्सा के हवाले कर दी, जबकि इलाके में फजा सोगवार है। मुस्तफाबाद की अमीर कॉलोनी शरकी बस्ती की रिहायशी 25 साला ज़हनी माजूर शादीशुदा खातून महनाज बीबी गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और लापता हो गई। खातून के शौहर मोहम्मद उमर की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि बाद अज़ा लापता खातून की लाश कोट राधा किशन के करीब नहर से बरामद हुई, जिसे पुलिस थाना राधा किशन की तहवील में ले लिया। जबकि पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर तस्वीर भी जारी की गई, जिसके बाद खातून की शनाख्त मुमकिन हो सकी। कानूनी तकाज़े मुकम्मल होने के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई है, जबकि मरहूमा को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। और यहाँ आपको आगाह करते चले कि कसूर में नेट की तार चोरी करने का वाक़या पेश आया। मुबैना तौर पर बगैर वर्दी पुलिस एहलकार की मुदाखलत और मुलजिम से मकमकाव हुआ। मजीद आपको बताया कि कसूर के थाना ए डिवीजन की हदूद में नेट की तारें चोरी करने का वाक़या सामने आया है, जिसने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए। मजीद आपको बताया कि ज़राए के मुताबिक मुलजिम को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। ताहम मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार सफदर चंद ने मकमकाव करके मुलजिम को छोड़ दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मज़कूरा एहलकार बगैर वर्दी मौके पर पहुंचा और असलहा निकाल कर मुलजिम को डराता रहा, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जैकबाबाद में एसएसपी की ज़िला सदारत क्राइम मीटिंग, जहां जराइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और सख्त क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए। जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। खबर दें आपको कि जैकबाबाद में एसएसपी की ज़िला सदारत क्राइम मीटिंग में जिला भर के थानों की कारकर्दगी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। एसएसपी ने जुआ, मनशियात, आंकड़ा पर्ची और फहाशी के अड्डों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करने का हुक्म दिया है। इन्होंने मुलज़्ज़म जराइम में मुलव्विस अनासिर और इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने, स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग बढ़ाने, FIR के इंदराज को यकीनी बनाने और शहरियों के मसाइल मेरिट पर हल करने की हिदायत जारी की है। दूसरी जानिब SSP ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA ने कार्रवाई करते हुए लैपटॉप से स्पेन के जाली रेजिडेंट कार्ड्स बरामद कर लिए हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ने इस गुजरांवाला के मुसाफिर अबू बकर ने उम्रा के बहाने यूरोप जाने की कोशिश की, लेकिन सियालकोट एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की बरवक्त कार्रवाई ने इसके शातिराना मंसूबे को नाकाम बना दिया। तलाशी के दौरान एहलकारों ने इसके हैंड कैरी बैग से लैपटॉप बरामद किया और इसकी स्क्रीन के पीछे छुपाया गया स्पेन का जाली रेजिडेंट कार्ड निकाल लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुसाफिर ने इंसानी स्मगलिंग के लिए 92 लाख रुपए अदा करने का मुआहदा किया था, जिसे FIA इमिग्रेशन सियालकोट की बरवक्त कार्रवाई ने नाकाम बना दिया। साथी रिपोर्टर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। खानेवाल से खबर शामिल करेंगे, जहां खानेवाल में मैट्रिक इम्तहानात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद मुतारिक मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ के दौरे के दौरान इंतजामात का जायजा लिया और सख्त हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हाई स्कूल और गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में कायम मैट्रिक इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया, जहाँ इन्होंने हाजिरी शीट, रोल नंबर, स्लिप के मुताबिक सीटिंग प्लान और पेपर्स और कॉपियों का तफसीली मुआयना किया है। इस मौके पर उन्होंने तलबा से फरहम करदा सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया, जिस पर तलबा ने इत्मीनान का इजहार किया। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि इम्तिहानी अमल को हर सूरत शफाफ और गैर जानिबदार रखा जाए, जबकि पेपर्स की तरसील और तकसीम को भी पॉलिसी के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि जिला खानेवाल में मैट्रिक के इम्तहानात शफाफ अंदाज में जारी रहें। इन्होंने मजीद वाज़ेह किया है कि इम्तहानी मराकज़ के 100 मीटर के अंदर गैर मुतालिका अफराद के दाखिले, मोबाइल फ़ोन, किताबें और दीगर मवाद लाने पर मुकम्मल पाबंदी है, जबकि मराकज़ के बाहर हुजूम और बदनज़मी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
और अब बात करें, आपको बताएं कि LPG की कीमत में इजाफे के बाद शहरियों का एहतजाज हुआ। टैक्सी ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए हैं। मजीद आपको बताएं कि मुजाहिरीन ने LPG माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। घोटकी में हुकूमत ने LPG की कीमत 304 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी है। मजीद आपको बताएं कि लेकिन मकामी LPG माफिया ने अपनी मनमानी करते हुए फी किलो 460 रुपए वसूल करना शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर्स और शहरियों ने माफिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि ये सरासर जुल्म है और माफिया ने रियासत के अंदर अपनी अलग रियासत कायम कर रखी है। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करेंगे। टंडो मोहम्मद खान में मल्ला बरादरी के अफराद ने पुलिस कार्रवाई के दौरान जाबाक होने वाले बुजुर्ग की लाश SSP ऑफिस के सामने रखकर एहतजाज और धरना दिया। मुजाहिरीन इंसाफ और शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। टंडो मोहम्मद खान में मल्ला बरादरी के मुजाहिरीन ने पुलिस के मुबैना बिला जवाज छापे और घरों में मौजूद बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि इस कार्रवाई को शफाफ अंदाज में देखा जाए, जबकि मजीद आपको बताएंगे कि जिस पर इन्होंने SSP ऑफिस के सामने लाश रखकर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि SHO समेत पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जाए और वाक़ई की शफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में आ सके। दूसरी जाने बात करें और आपको बताएं कबूला शरीफ के गोला चौक में लाखों रुपए की लागत से नस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट महज 2 माह बाद ही बंद हो गया है। मजीद आपको बताएं कि कबूला शरीफ के मसरूफ गोला चौक में आवाम को साफ पानी की फराहमी के लिए लाखों रुपए की लागत से नस्ब किया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सिर्फ 2 माह बाद ही बंद हो गया, जो मुताल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी और अदम तवज्जो को जाहिर करता है। मजीद आपको बताएं कि प्लांट की बंदिश के बायस दुकानदारों और शहरियों को पीने के साफ पानी के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि अवामी फलाह का ये मंसूबा अमली तौर पर नाकामी से दो चार दिखाई देता है। मजीद आपको बताएं कि शहरियों का कहना है कि अगर इस मंसूबे को बरकरार नहीं रखना हो तो सरकारी फंड्स क्यों खर्च किए गए। खबर शामिल करेंगे। आरिफ वाला में दरियाए सतलज पर तैयार किया गया जदीद बेड़ा पानी में छोड़ दिया गया, जिससे कश्तियां बहावलनगर और फोर्ट अब्बास जाने वालों के लिए घंटों का सफर अब मिनटों में तय होना मुमकिन हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफीक मुगल की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में दरियाई सतलुज की तंदो तेज लहरों के बीच मलाहों ने अज़म और हिम्मत की एक नई मिसाल कायम कर दी है। दिन रात की अनथक मेहनत और लाखों रुपए मालियत की खातिर रकम से तैयार किया गया यह अजीमुल शान बेड़ा अब वेहाड़ी और बहावल नगर के अवाम के लिए एक बड़ी सहूलत बन चुका है। दो ताकतवर ट्रैक्टरों की मदद से चलने वाला ये बेड़ा न सिर्फ मुसाफिरों बल्कि माल बरदार गाड़ियों को भी बआसानी दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने की ताकत रखता है। इस इकदाम से जहाँ घंटों का सफर मिनटों में तय हो रहा है, वहाँ शहरियों के वक्त और ईंधन की भी खातर बचत हो रही है। पर जो सफर है वो ज्यादा महफूज है और इसके ऊपर हम ट्रैक्टर ट्रालियां जो भी चीजें चढ़ा दें, इस पर ये नहीं है कि ये डूब जाएगा। ये वैसे तो देखा जाए तो अल्लाह ताला की मर्जी होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पर जितना भी वजन हम लोग डाल दें कोई टेंशन की बात नहीं। और आसपास वाले लोगों के लिए ये स्पेशली बहुत ज्यादा एक अच्छा स्टेप है कि वो अपने यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली जो गुजारना चाहें गुजार सकते हैं और बहुत अच्छा ये मामला चल रहा है। वजह तो सानू आ हसन के लगने अरे बेट ओवर दस तरह ये विचे दे विचे कढण वाला कोई नहीं। इनके बड़े फायदे भाई जान, इसके बहुत बड़े फायदे हैं जेडे आप सोच भी नहीं सकने। साडा माल मुआशी और साडे सारे माल इंसान सारे दी हिफाजत वास्ते ये बहुत अच्छे फायदे ने। ये तो साडे समझण तो ही बाला तार हैं जितने कि इस दरियाई बेल्ट दे फायदे हैं इस दे अपने दे बेड़े दे जी। मलाहों और अहले इलाका का मजीद कहना है कि इस बेड़े की बदौलत दो इजला के दरमियान तिजारत और भाईचारे के नए रास्ते खुल गए हैं। लोगों के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि अवामी हिम्मत की इस नमूने की हौसला अफजाई करे ताकि पसमानदा इलाकों के मकीनों को मजीद बेहतरी सफरी सहूलियात में असर आ सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शफीक मुगल, Metro One न्यूज, आरिफ वाला। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताया सादिकाबाद के नवाही गांव अहमदपुर लम्मा में ज़राई तरक्की की एक नुमाया मिसाल सामने आई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सादिकाबाद के नवाही गांव अहमदपुर लम्मा में ज़रई तरक्की की एक नुमाया मिसाल इसके ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस तकरीब का मकसद जदीद ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ देना और किसानों को बेहतर पैदावार के लिए राग़िब करना था। ये तकरीब FAO के डिजिटल विलेज रिकग्निशन इनिशिएटिव के तहत मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी डॉक्टर मसूद सलीम थे, जबकि सदारत FAO की टीम के वलीद अहमद, मोहम्मद मुदस्सिर मकसूद और दीगर ज़रई माहिरीन ने की। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान और मकामी काश्तकारों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। तकरीब के दौरान उन काश्तकारों में रिकग्निशन सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए जिन्होंने जदीद ज़रई तरीकों को अपनाते हुए अपनी फसलों की पैदावार में नुमाया इजाफा किया। जो पूरी दुनिया के अंदर 1000 गांव के अंदर 30 गांव को सिलेक्ट किया गया था और पाकिस्तान में एक गांव अहमदपुर लम्मा को सिलेक्ट किया गया था डिजिटल विलेज इनिशिएटिव के तहत, और उसके तहत आज इसकी रिकग्निशन सर्टिफिकेट की सेरेमनी की गई है। फेस के मोहम्मद अब्बास ज़िया का कहना था कि मुख्तलिफ ज़रई मंसूबों पर भी रोशनी डाली गई। ये अहमदपुर लम्मा में फेस के प्लेटफॉर्म पे जो है ये अपना FAO जो है, जो यूनाइटेड नेशन का इदारा है, उन्होंने एक डिजिटल विलेज इनिशिएटिव जो है वो उसके हवाले से डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत का कहना था माहिरीन के मुताबिक जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न सिर्फ पैदावार में इजाफा कर रहा है बल्कि ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। कैमरा टीम के साथ मलिक अली जान, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सांगढ़ में अलाइड नॉलेज अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब में कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ वलेजो मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। खिताब में सिंध के आवाम को सरदारी और वडेरा शाही के खिलाफ जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मजीद इस हवाले से आपको बताएं कि अयाज लतीफ़ वलेजो ने सांगढ़ में अलाइड नॉलेज अकेडमी की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वडेरे सरदार और जागीरदार सिंध के दुश्मन हैं और चाहते हैं कि आवाम जाहिल रहे। इन्होंने सिंध के नौजवानों से अपील की कि वो सरदारी और कबायली निज़ाम से आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। इन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम की मजम्मत की और कहा कि यह पाकिस्तान और सिंध के आवाम को मायूस करने वाली तरमीम है, जबकि 28वीं तरमीम के जरिए सिंध के बाकी इख्तियारात भी ख़त्म किए जा सकते हैं। इसी हवाले से मजीद उन्होंने कहा कि सिंध में हुकूमत की रेट नजर नहीं आती। पुलिस अवाम के बजाय जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करती है और वज़रा और अफसरान अवाम के टैक्स से चलते हैं मगर खुद को बादशाह समझते हैं। इन्होंने जोर दिया कि सबसे ताकतवर कुर्सी नहीं बल्कि अवाम है, लिहाजा इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और यहाँ आपको आगाह करते चलें कि कश्मीर में इंसानियत की खिदमत की एक खूबसूरत मिसाल नादार और मोहताज मरीजों के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर में साबका ज़िला नाज़िम सरदार सलीम खान मज़ारी की काफियों से अम्मा नूर खातून की याद में इब्राहिम ट्रस्ट कराची की ताउन से PPHI कश्मीर में 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। जहाँ कराची से आए माहिर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना और ऑपरेशन किए। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कश्मीर का, एहसान साहब का, एडमिनिस्ट्रेशन का और इस हॉस्पिटल का कि इन्होंने हमें जो है इस नेक काम के लिए यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम है समीर आदिल थे वो, मैं ख़ुद कराची से हूँ। अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल जिसकी तरफ से हम ये पूरी टीम यहाँ पर आए हैं कश्मीर में तालका हॉस्पिटल में। कल हमने जो है 500 बंदों को हमने स्क्रीन आउट किया है और जिसमें से 175 जो हैं वो हमारे कैटरिक जिसको हम मोतिया कहते हैं वो एडमिशन हुई है। और कल हमने जो सर्जरी की है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में वो हमने 80+ हम कर चुके हैं। इस मोतिये के ऑपरेशन में कराची से माहिर डॉक्टर्स हमारे साथ सर्जन्स आए हैं और ये फ्री में ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ की कश्मीर की कम्युनिटी और यहाँ की मैनेजमेंट बहुत सबसे ज़्यादा अच्छी है। जो लोग कहते हैं कश्मीर के हालात ख़राब है, ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मैं कराची से आया हूँ। कैंप के पहले रोज तकरीबन 250 से 450 मरीजों का OPD किया गया, जबकि 75 कामयाब ऑपरेशन किए गए। दूसरे रोज मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा देखने में आया, जहां 650 से ज्यादा मरीजों का मुआयना किया गया, जबकि 150 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। कैंप में आने वाले तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। यहाँ पर ये हर साल ऑपरेट होते हैं।
पिछले साल भी राउंड अबाउट 400 मोतिये के ऑपरेशन हुए थे और इस साल भी हम पुरुमीद हैं कि यहाँ पर तकरीबन 500 तक ऑपरेशन होंगे मोतिये के। हमारा काम सिर्फ ये होता है इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, और ये कैंप जो है वो मंसूब है सरदार सलीम जान साहब की वालदा के नाम से। इलाका मकीनों ने इस फ्री आई कैंप को सराहते हुए कहा है कि इस तरह के इकदाम न सिर्फ गरीब आवाम के लिए नेमत से कम नहीं बल्कि सेहत के शोबे में एक मस्बत पेशरफ्त भी है। कश्मीर में मुनक्कद होने वाला ये फ्री आई कैंप सैकड़ों मरीजों के लिए नई रोशनी की उम्मीद बन गया। और अब शहरनामे में खबर शामिल करेंगे गुजरावाला से, जहां गुजरावाला में 1 अप्रैल को मुनफरिद अंदाज में मनाते हुए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से सैनिटेशन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सफाई के अमले की खदमात को खराज तहसीन पेश करना है। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के रहनुमा मलिक नसीरुद्दीन हुमायूं ने कहा है कि मरकजी क़यादत की हिदायत पर गुजरावाला समेत मुल्क भर में 1 अप्रैल को सैनिटेशन डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने हाथ में फूलों की शाख थामी सैनिटरी वर्कर्स की खदमात को सराहते हुए कहा कि ये दिन सफाई के अमले की मेहनत, लगन और शहर को साफ रखने में उनके किरदार के एतराफ़ के लिए मंसूब किया गया। इनका कहना था कि फेडरेशन ने अप्रैल फूल जैसी गैर संजीदा रिवायत की हौसला शिकनी करते हुए इस दिन को मज़बूत अंदाज में मनाने की बुनियाद रखी और गुज़िश्ता 5 सालों से पाकिस्तान भर में बाकायदगी से सैनिटेशन डे मनाया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सैनिटरी वर्कर्स हमारे मुआशरे के हकीकी हीरो हैं और इनकी खदमात को हमेशा कदर की निगाह से देखना चाहिए। मज़ीद आपको बताएं कि घोटकी में साल 2026 की गंदम की फसल पककर मुकम्मल तैयार हो चुकी है, लेकिन काश्तकारों के चेहरों पर परेशानी है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना इकबाल से। जी राना इकबाल, आगाह कीजिएगा। साल 2026 की जो है गंदम की जो फसल है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गंदम की फसल तो तैयार हो चुकी है, लेकिन यहाँ के काश्तकार जो हैं वो शदीद मुश्किलात में जो है अपने आप को घेरे हुए और नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं मुश्किलात के लिए आज हम इनके पास यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनकी फसल जो पककर तैयार होगी है उनके लिए खुशी का लम्हा है, लेकिन उनके चेहरे पर जो उदासी है इसकी क्या वजह है? बस जी हमारे को तो जो रेट नहीं मिल रहा, अब जो तेल जो है वो महंगा, खाद महंगी, और हम बस परेशान है। हम अगर हम लेके जाएं उधर मंडी में तो वो कहते हैं कि 2 सेर कांटा लगाओ, ये इस तरह करो और बात देते हैं 2000। हुकूमत है कि या तो तेल का कम करें, खाद दवाई कम करें, क्योंकि ट्रैक्टर वाले को जो हम लेके आते हैं तो वो 3000 1 घंटे का लगाता है। बस बस हम तकलीफ में, अपनी ज़मीन है इसलिए हम जा नहीं सकते किधर। यह तलबा हमारा है कि हम किसान हैं, गरीब हैं, ये शहर में ले जाते हैं। अभी गंदम का मन 2500-2200 में देते हैं। तेल इतना महंगा है, पानी भी देते हम पैसों का पूरा हो सकता है ना, बच्चों का पूरा हो जाता है। फसल तैयार होती है, हम इतने परेशान हैं। फसल तैयार होकर मार्केट में ले जाते हैं, हुकूमत का कोई रेट नहीं है हमारी तरफ। जी, आपने काश्तकारों की परेशानी सुनी। उनका यही कहना है कि हम साल भर जो है अपनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और अपनी फसल उगाते हैं। जब ये फसल हमारी मुकम्मल तैयार हो जाती है तो काट कर हम जब मार्केट में लेके जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई भी गंदम का जो है रेट मुकर्रर नहीं किया जा सका है। लेकिन मार्केट में बैठे हुए आम फ्लोर मिल मालकान और उसके साथ साथ जो है आम व्यापारी सस्ते दामों हमसे वो गंदम जो है खरीदते हैं, जिससे ना ही हमारा गुजारा हो पा रहा है और ना ही हमारे अखराजात पूरे हो रहे हैं। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि खुदारा इन किसानों के लिए कोई ऐसा प्लान तरतीब लेके आए ताकि किसान भी जो है अपनी ज़मीन का जो है ना सीना चीर कर उगाने वाली फसल का जो है ना मुआवजा मुकम्मल हासिल कर सके। जी। हैदराबाद स्पोर्ट्स क्लब में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया, जहां इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों, मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो और बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी इरफान यूनुस ने शिरकत की। चैंपियनशिप की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई, जबकि पहले मैच में बलूचिस्तान बुल्स के अबैदुल्ला ने सिंध स्टैलियंस के मोहम्मद समी को शिकस्त दे दी है। हैदराबाद में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज इफ्तिताही तकरीब में मेयर हैदराबाद, खिलाड़ियों और बॉक्सिंग फेडरेशन के आला ओहदेदारों की शिरकत। चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई भी गई, जबकि पहले मैच में बलूचिस्तान बुल्स के उबैदुल्ला ने सिंध स्टैलियंस के मोहम्मद समी को शिकस्त दी। इवेंट डायरेक्टर शहीद बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बड़ा टैलेंट मौजूद है और इसे प्रमोट किया जाएगा। मेयर हैदराबाद काशिफ खान शोरो ने कहा कि पाक आर्मी की काविश काबिल तारीफ है और ऐसे इवेंट्स वक्तन फवक्तन होने चाहिए। चैंपियनशिप में कल
कुल 189 फाइट्स होंगी, जबकि ये 5 अप्रैल को अख्ताम पजीर होगा। शहरनामे से फिल्म इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।